اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نقاب نیوز چینل کے مقبول عام پروگرام A20 ڈائلاگ کے ساتھ حاضر ہیں عدیل مرزا اینڈ بالم۔ جناب، پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اسلام دولت کی تقسیم پہ بہت فوکس ہے، اور اس میں کہیں عشر کا نظام ہے، کہیں زکوٰۃ کا، کہیں خمس کا، اور یہ تمام جو پیسے کی تقسیم کا، دولت کی تقسیم کا ہے سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے دولت کا ارتکاز نہیں ہوتا، اور معاشرے میں تقریباً ہر شخص جو ہے وہ اپنی انا اور اپنی عزت کے ساتھ جیتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں آپ کی بڑی خوش نما ہیں، یہ سننے کے قابل بھی ہیں اور پڑھنے کے قابل بھی ہیں۔ کیا یہ کھانے کے کام آ سکتی ہیں؟ اگر بھوک لگی ہو، آپ کے الفاظ منہ میں اگر ڈالیں پیٹ بھر جاتا ہے؟ دیکھیے، میرے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، ایک سسٹم کی نشاندہی کر رہا ہوں جو میرے دین میں دیا ہے۔ اگر اس سسٹم پہ ہم چلیں یا چلتے تو یقیناً آج پاکستان میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے، لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ کی بات درست ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، گراؤنڈ جو ریالٹی ہے، 2 وقت کی جو روٹی ہے، اس کے لالے نہیں پڑے ہوئے ہمیں۔ بے شک پڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ بجٹ نکالتے ہیں گھر کے راشن کے لیے، تو پیچھے آپ کے پاس بل کے پیسے نہیں ہوتے تھے بجلی کا بل ادا کرنے کے۔ اگر بجلی کا بل آپ ادا کرتے تھے تو بچوں کی آپ فیسیں نہیں دے سکتے تھے۔ یہ کتنی فیملیز ہمارے ملک میں ایسی، کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ان حالات سے نبض آزما ہیں؟ سر، آپ نے مرزا صاحب مجھے مجبور کر دیا ہے، حالانکہ وہ آپ رونا نا پنجابی میں آپ کی آپ کہتے پہلے ہی ہیں بات کرتے ہوئے کہ لگتا ہے رو رہے ہو۔ قمیض اٹھاؤ گے تو اپنا ہی پیٹ جو ہے وہ آپ اس کو برہنہ کریں گے۔ تو میں ان پاکستانیوں میں سے ہوں کہ جو اس شرح سے بھی گرا ہوا ہے، جو اس مقام سے بھی گرا ہوا ہے۔ نہ میں نے 2 ماہ سے بجلی کا بل ادا کیا ہے، نہ میں نے بچے کی فیس ادا کی ہے، حالانکہ سمر ویکیشن ہے مگر فیس تو جانی ہے۔ یہ 2 مہینے کی بچے کی فیس بھی نہیں گئی ہے۔ گروسری جو ہم نے لاسٹ منتھ خریدی تھی، اس کو ہم تھوڑا کر کے چلا رہے ہیں۔ تو حالات تو بہت خراب ہیں۔ اچھا، ایک خوراک کے لیے، ایک گروسری کے لیے آپ اپنے گھر کو لے لیں، ہاں، کتنی آمدن چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے پر منتھ کہ ہم اچھی خوراک کھا سکیں؟ سر، اچھی خوراک کے لیے جو یہ سروے ایک نیا حکومتی ادارے نے، وفاقی ادارہ شماریات نے جو ہے وہ جاری فنانس کیا ہے، ڈویژن، فائنانس ڈویژن نے 2023-24 کا، اس کے مطابق 53,000 روپے کم و بیش ایک پاکستانی فیملی کو چاہیے۔ رکیں یہاں 53,000 روپے پر منتھ جی ایک فیملی کے لیے، صرف خوراک کے لیے جی، چاہیے۔ صرف خوراک کے لیے۔ یہاں مجھے آپ یہ بتا دیں جی۔ کہ پاکستان میں کتنے پرسنٹ ایسے گھرانے ہیں جی، جن کی آمدن 50,000 سے زیادہ ہے؟ مجھے تو صرف آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں الٹا آپ پر سوال کر رہا ہوں کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ، اس نے ایک عام آدمی کی ماہانہ تنخواہ کا کیا رکھا ہے ریشو، یہ بتائیے گا۔ وہ تو کم از کم مجھے 37,000 کی ہے نا انہوں نے۔ اور 53,000 روپے صرف ادارے خوراک، شماریات کے کہتے ہیں صرف خوراک کے لیے صرف خوراک کے لیے چاہیے۔ اور یہ جو میں نے سوال آپ سے کیا ہے نا، جی، میں آپ کو جواب بھی دے دیتا ہوں۔ جی جی یہ جو 50,000 سے کم آمدنی والے لوگ ہیں نا، یہ 82% ہے پاکستان میں۔ اچھا، کل پورے پاکستان میں 82% ایسے گھرانے ہیں جن کی آمدن 50,000 سے کم ہے، باقی صرف 18% وہ لوگ ہیں جن کی آمدن 50,000 سے زیادہ ہے۔ اگر لاکھ پہ چلے جائیں نا تو 92 سے 93% بن جاتی جبکہ ہے۔ یہ جو شماریات والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے 2.3% جو ہے وہ ہے شرح بڑھوتی، اور اگر جو پاکستان میں دولت موجود ہے، جو خزانے میں، ہمارے قومی خزانے میں موجود ہے، یا جو گھوم رہی ہے دولت جو پاکستان جنریٹ میں، کرتے ہیں ہم، اگر اس کی صحیح معنوں میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو تو $1,680 ہر پاکستانی فیملی کو سالانہ جو ہے وہ دستیاب ہو سکتے ہیں، میسر آ سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں 19 لاکھ روپے ہر پاکستانی گھرانے کو جو ہے وہ میسر ہر سال 19 لاکھ روپیہ جی جی ہر سال ہر پاکستانی یعنی گھرانے ہر کو۔ پاکستانی ایک خوشگوار زندگی جی اگر سکتا آپ کی دولت کی منصفانہ تقسیم ہو تو جی ہاں جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی بالم صاحب، جی نہ تو یہاں پہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، جی نہ زکوٰۃ منصفانہ طریقے سے دی جا رہی ہے، جی جی
जहाँ पे एक ही काम हो रहा है जो कि हर हुकूमत उस पर जोर देती है और अवाम भी इस पर खुश है, वो क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कशकोल, एहसास, ठीक, सोशल सर्वे, ये है क्या? बेसिकली ये कौम को मजमूई तौर पर बेकारी बनाने की ये कोशिश है। बिल्कुल कामचोर, नाअहल, निकम्मे, ये बनाने की कोशिश हो रही है। और कौम भी बनने मेहनत पे करके खुश है, कमाना। और जी हाँ, कौम भी खुश, यकीन करें ऐसे लाइनें लगी होती हैं जी जी और बड़े अच्छे लोग ये। अच्छा, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ये पिछले दिनों रिकॉर्ड चेक हुआ ना, जी, जी। पता लगा उसमें ब्यूरोक्रेट, उसमें सरमायादारों के भी नाम उसमें शामिल थे जो 10,500 रुपया ले रहे थे। बताइए गरीब का हक भी मार रहे थे। और अब जो सर्वे हो रहा है ना पंजाब में, हाँ जी। अब रजिस्ट्रेशन हो रही है ऐसे लोगों की जिनको मदद की जाया करेगी, या जो भी सोशल सर्वे इकनॉमी उसका नाम रखा है उन्होंने, इसमें ऐसे ऐसे लोग अपने नाम में, मेरा चूँकि रोज़ाना का वास्ता है, यूनिक काउंसिल में इधर उधर जाना होता है, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, मैं देख के निकल आता हूँ। आप ही जाते हैं? मेरा काम है रोज़ाना, हाँ, आप ही का काम है, अब मेरा ही काम है। आप ही जाते हैं। मैं तो फिर उस वक्त कहीं जो है ना वो चने खाने चला जाता हूँ, आपको लंगर लूटने चला आप जाता उन लोगों को देखते नहीं हो ना, लंगर मैं लूटने तो चला उनको चूँकि इनके चेहरे, मुझे उन ज़ाती इनकम का पता है, लोगों के कारोबार क्या है। सही मैं कहता हूँ यार ये लाखों के इनके कारोबार हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन करने आए हुए हैं। अच्छा, ये जो हमारी जीडीपी है, ये सर्वे कहता है कि इसमें इस वक्त जो है ना वो 14% है या 1.4 है। ये असल में जो खित्ता है ना आपका, हाँ जी। उस खित्ते में जो आपके खित्ते को मालिक है ना, वो गरीब से गरीब जो मुल्क हैं जी, जी। उनसे भी कम है। सनती कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है पाकिस्तान में, मुतासर नहीं हो रहा, तबाह हो रहा है तबाह हो रहा आपके बिजली की बिलों की वजह से। बिजली के बिल, यानी एक गरीब आदमी तो बिजली के बिल को देखते ही उसे हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं, संतों की अब बात हो रही हो है। चुकी सनकार गरीब गरीब लोग तो नहीं। एक दूसरे का गला काटने नहीं, पे, गरीब भाई की के भाई का गला काट दिया आपने बिजली संतों का की बात की, हाँ। संतों कर लें, संतों से आप गरीबों पे आ गए। हाँ, सनतकार की बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मिर्जा साहब कि सनतकार जो जिसके पास सनत है, पैसा है, माल है, दौलत है, वो जो है उस पे असरअंदाज हो रहे हैं बिजली के नर्क। गरीब तो बेचारा जो है वो बिजली का बिल देख के मर जाता है। वो मरता कैसे है? जब आपकी सनतें नहीं ना चलेंगी, जी जी जी, सनत का पहिया नहीं ना घूमेगा, जी, जी। बेरोजगारी फैलेगी, जी। ला माला उसका असर गरीबों पे पड़ेगा। जी। अच्छा, जो पाकिस्तान का बजट है, इसी सर्वे ये में बताया गया है कि उसमें 807 लोगों के लिए पाकिस्तान में एक डॉक्टर मैसर है। 807। बजट कितना है वैसे सेहत का? सेहत का 1%, तालीम का 1.5%, और यानी महंगाई की शरह बताया गया है कि कम हो रही है, 26%। दूँ आपको चुल्लू भर पानी, दूँ आपको चुल्लू भर पानी? अभी रहने दे, प्रोग्राम कर लूँ फिर उसके बाद में देना है आपने। नहीं, पानी बहुत है, अच्छा, पानी बहुत दस्तयाब है। यहाँ पे जोड़ों का पानी भी है, हाँ जी। क्योंकि बरसात का मौसम भी है, जहाँ मर्जी छलांग आप लगा दो, मैं नहीं रोकूंगा। अच्छा जी, एक जो हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के जो मसाइल हैं वो इन सर्वेज में जो कि वफाकी इदारे वो कर रहे हैं, तो जब यार ये सर्वे कर लेते हैं और उनको बीमारी का पता लग जाता है, हमारी बीमारियों का पता लग जाता है, तो फिर ये काहे के डॉक्टर हैं, ये काहे के जो है वो प्लानर्स हैं, ये इन्होंने जो तालीम हासिल की है उस तालीम का गरीब आदमी को क्या फ़ायदा कि ये उन बीमारियों का इलाज नहीं है इनके पास। इलाज है ना। हाँ। आपको भिखारी बना रहे हैं ना। हाँ, आपको वो, अच्छा, आपको इंसान नहीं समझते, ठीक है, आपको एक वोटर समझते हैं, जी, आपको एक कस्टमर समझते हैं। बतौर वोटर, बतौर कस्टमर, उन्होंने आप जो सलूक करना है ना वो आपसे कर रहे हैं। अब उसका भी एक रेट रखा हुआ ना उन्होंने, एक बिरयानी की प्लेट, वो हमारी कीमत है, बिरयानी की प्लेट नहीं, खिलाओ और वोट ले लो। अब थोड़ा सियाने हो गए हो ना आप। हाँ। अब आपके लिए 10,500 हाँ। या 12,000 हाँ। महीने का काफ़ी है आपको, बल्कि 3 महीने का, जी जी, 3 महीने का, ये आपके लिए 12,000 काफ़ी है। अब बताइए। आप लाइनों में खड़े होकर वो लेते भी हो, जी जी जी। उनका शुक्रिया भी अदा करते हो, नारे भी लगाते हो, और भिखारी भी बन के ना खुश भी हो। अच्छा मेरे साहब, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नामी आलमी एक इदारा है, उसने जो एक आम पाकिस्तानी है उसकी तरक्की का पैमाना जो उसने हमारे सामने हमारी आंखों पे रखा है, तो दुनिया के ममालिक की सफ़ में पाकिस्तान 164वें नंबर पे खड़ा है एक आम आदमी की तरक्की। ये भी काबिल शर्म है। अच्छा, जो आपके पड़ोसी मुमालिक है ना जिनकी आप मदद किया करते थे, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, जो आपका बगल बच्चा है जो आज से निकला है, उससे भी आप कम हो। ये आउट ऑफ 250 कंट्रीज आपका 164वां नंबर है। अच्छा, किसी भी शोबे में आप चले जाएं, आप अदलिया के शोबे चले जाएं,
आप एजुकेशन में चले जाएं, किसी भी शोब 150 से नीचे नहीं आ पाएंगे। पिछले दिनों में पासपोर्ट का वो देख रहा था कि पासपोर्ट का जो इंडेक्स है पाकिस्तान का कौन सा नंबर है। यकीन करो पहले 100 में पाकिस्तान का पासपोर्ट मुझे मिला ही नहीं। ये वजह क्या है? अच्छा, ये कोई दुश्मनी नहीं हो रही आपके साथ, या पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ नहीं है। आपके अपने करतूत ऐसे हैं, आपकी अपनी मनसूबाबंदी ऐसी है, आपकी अपनी पॉलिसी। अच्छा, कोई पाकिस्तानी लेबर अब लेने को तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। उसकी वजह क्या है? हम चोर हैं, काम नहीं करेंगे, पैसे टका के मांगेंगे, काम एक दिले का नहीं करेंगे। बहैसियत कौम भी हम चोर हैं, बहैसियत कौम भी हम डाकू हैं, और काम चोर भी हैं। चलिए, ये एक ऐसा आईना है कि जिसके सामने खड़े होते हुए शर्म आती है, मगर हमारी नाअहली है कि हम शर्मिंदा तो होते हैं, मगर इस शर्म, इस खजालत से छुटकारे के लिए खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं करते। अपने अंदर जो हमारे इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे जो बुराइयां हैं, जो कि जड़ पकड़ चुकी हैं, हम उनके ख़ात्मे के लिए कोशिश करने को तैयार नहीं हैं। हम उठ के खड़े होने को तैयार नहीं हैं। हम में जवां मर्दी का ख़ात्मा हो गया, हम बुज़दिल हो गए हैं, हम मेहनत से जी चुराने लगे हैं। ये सब बातें अपने लिए, खुद के लिए हम कहते हैं, जो कि उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। खुदा करे कि हम अपने हाल को देखते हुए खुद पे इन्हिसारी की तरफ जाएं, इनफरादी तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी। कासा तोड़ दें। ये IMF और दीगर जो ममालिक से भीख मांगना है, इसको हम ख़त्म करें, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए खुद इन्हिसारी की तरफ जो है वो हम अपने कदम बढ़ाएं। देने वाले बने, जी। लेने वाले ना बने, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। जनाब, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।